we found that Gaurav Gogoi's wife, Elizabeth Kolban Gogoi, was working in Pakistan. Since March 18, 2011 to March 17, 2000, we found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh. Pakistan naমৰ organization এটাৰ তেওঁ chief executive officer আৰু is the CEO of Lead Pakistan. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। असम की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा विवाद तेज हो चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से जुड़े कथित पाकिस्तान लीक मामले की जांच अब केंद्र सरकार को सौंप दी है। शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार ने अब तक जुटाए गए सभी सबूत केंद्र को दे दिए हैं और अब एक केंद्रीय एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करेगी। हमने सबूत का साथ ये मामला भारत सरकार को हस्तांतरित किया और आगे भारत सरकार उसका ऊपर फैसला ले। यह मामला केवल एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं रह गया, बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संपर्क, संवेदनशील जानकारी और चुनावी राजनीति सब कुछ एक साथ जुड़ गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने दावा किया है कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का पाकिस्तान से जुड़े कुछ लोगों से संबंध रहा और यह संबंध किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। There must be something more. Then we searched and then we found that Gaurav Gogoi's wife, Elizabeth Kolban Gogoi, was working in Pakistan. Since March 18, 2011 to March 17, 2012. And then we searched further on different open source and social media. Then we found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh. When a sitting MP and the deputy leader of Congress party is involved in it, মই ভাবো this become more and more serious. So we just want to go through our outcome of our investigation on Ali Tokir Sheikh and his gang in entirely. This investigation was done by Assam Police SIT. A case was registered on our CID police station. शर्मा का आरोप है कि गौरव गोगोई ने पाकिस्तान की यात्रा की, वहां के कुछ व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखा और उनकी पत्नी ने भी पाकिस्तान से जुड़े लोगों के साथ काम किया। हालांकि यह भी स्पष्ट कर दें कि इन आरोपों की अब तक किसी केंद्रीय एजेंसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। अब आपको बताते हैं कि यह विवाद शुरू कैसे हुआ। 2 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी नागरिक अली तोकीर शेख के बेहद करीब थे। We found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh. When a sitting MP and the deputy leader of Congress party is involved in it, मैं भाबो this become more and more serious. So शर्मा के अनुसार एक पाकिस्तानी फर्म ने एलिजाबेथ को नौकरी दी और बाद में उन्हें भारत ट्रांसफर कर दिया गया। এলিজাবেথ কলবান গগৈ তেওঁ আমেৰিকাত কাম কৰিছিলে আণ্ডাৰ সিনেটৰ টম উডালি। তাৰ বিষয়ে আমি কম 2011 চনত তেওঁ পাকিস্তানলৈ আহে আৰু তেওঁ লিড পাকিস্তান নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত তেওঁ যোগদান কৰে। আলী তকিৰ শেখৰ মেইন ফৰ্টেটো আছিলে যে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি যিখন অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যাক কেনচেল কৰিছিলে,
Ali Tokir Sheikh is always of the view that Hindu Jala Chukti Pakistaনৰ স্বাৰ্থত আৰু এইখন সদায় বাহাল থাকিব লাগে। आरोप ये भी लगाया गया कि एलिजाबेथ भारत से जुड़ी हुई जानकारियां इकट्ठा कर पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को रिपोर्ट करती थी और इसके बदले उन्हें सैलरी दी जाती थी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अली तौकीर शेख 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आया और उसका उद्देश्य भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करना था। আলী তৌকিৰ শেখ কোন হয়? আলী তৌকিৰ শেখ এজন পাকিস্তানৰ প্ৰভাৱী নাগৰিক। আলী তৌকিৰ শেখ পাকিস্তানৰ প্লেনিং কমিশ্যনৰ উপদেষ্টা আছিলে আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ পাকিস্তান সামৰিক বাহিনীৰ অত্যন্ত নিকটৰ। তেওঁৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ হ'ল ইছলামাবাদ। ইয়াতে আমাৰ তেওঁৰ ওপৰত চেণ্ট্ৰেল এলিগেশ্যনটো হ'ল যে তেওঁ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰি ভাৰতবৰ্ষখনক অশান্ত কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল। নাও হাউ আলী তৌকিৰ শেখ বা আলী তৌকিৰ শেখ এই গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত কেনেকৈ সোমাই পৰিলে? আলী তৌকিৰ শেখ ইজ দ্য CEO অফ লিড পাকিস্তান। লিড পাকিস্তান নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ তেওঁ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আৰু ক্লাইমেট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নলেজ নেটৱৰ্ক CDKNৰ তেওঁ এছিয়ান হেড। গভৰ্ণমেণ্ট অফ পাকিস্তানত তেওঁ ইভেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিবিলাক কমিটি গঠন কৰে, হি ইজ এ মেম্বাৰ অফ মেনি কমিটিজ ফৰ্ম বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन इंटरनेशनल फोरम। माने ये भी कहा कि गौरव गोगोई ने कथित तौर पर संवेदनशील संसदीय जानकारी साझा की, पाकिस्तान की यात्रा की और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम पर पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क बनाए रख रहा। उन्होंने ये भी कहा कि गौरव को गिरफ्तार करने जैसा कदम अगर अभी उठाया जाता है तो उन पर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति करने का आरोप लगेगा, इसलिए उन्होंने जांच केंद्र पर छोड़ दी है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि SIT जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां इंटरपोल की मदद केंद्र सरकार और संसद से संवेदनशील जानकारी की आवश्यकता है, इसलिए मामला गृह मंत्रालय की चुनी हुई केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाएगा। अब गौरव गोगोई और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। गौरव गोगोई ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है कि आज से लगभग 14-15 साल पहले, आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो एक साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण आसिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो एक साल उस समय आज से 14-15 साल 11 में हैं, तब वो एक साल वहाँ पे थी और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर एक साल वो पाकिस्तान में रही और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई और तब से वो काम करी और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। तो अगर उन्होंने या मैंने, जब वे उस संस्था में थे, तो मैं भी आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, तो इसी बात का अब ये जो इनका तो रोटी ही मानहानि है, का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक मतलब बहुत ही एक C ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। असम के लोगों को ये सब पता है और हमारा उल्टा सवाल है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैरकानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? और आपको भी पता है कि कोई सीमा के उस पार जाता है तो कितनी जांच होती है,
सीमा के कोई इस पार आता है तो कितनी जांच होती है। और मैं तो विपक्षी दल का नेता हूं, सदन में एकदम बेबाक बातें रखता हूं। तो मेरा जो भी बायोडेटा सीवी सबके पास है। तो पिछले 11-12 साल में ये सरकार क्या कर रही है, तो 1 साल है चुनाव के लिए, चुनावी मंशा से। और जैसे कि मैंने दोबारा कहा कि कहीं ना कहीं हमारे दल के नेतृत्व में कुछ आशंकाएं आए, वही उनका मंसूबा था जो पूरी तरीके से आज हमारे दल के नेतृत्व ने उसको ध्वस्त कर दिया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ये आरोप अपने ऊपर लगे अन्य आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए लगा रहे हैं। उन्होंने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार ने असम में कथित तौर पर 4000 एकड़ जमीन कैसे हासिल की। असम कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि भविष्य में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो ऐसी जमीनों की जांच जरूर होगी और जरूरत पड़ी तो गरीबों में बांटी जाएगी। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि असम में कोई भी मुख्यमंत्री इन आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहा। अब इस विवाद की टाइमलाइन भी समझना भी जरूरी है। 10 फरवरी 2025 को असम के कुछ मीडिया पोर्टल्स में खबरें आई कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के कथित तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से संबंध रहे हैं। 12 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आईएफएस अधिकारियों के विदेशी जीवन साथियों को शादी के 6 महीने के भीतर भारतीय नागरिकता लेनी होती है, लेकिन सांसदों पर ऐसा नियम लागू नहीं होता। उन्होंने सवाल उठाया कि एलिजाबेथ ने 12 साल तक विदेशी नागरिकता क्यों बरकरार रखी। और 13 फरवरी 2025 को उन्होंने अपने हमले को और तेज कर दिया। 28 जनवरी 2026 को उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है और गौरव चाहे तो मानहानि का केस भी कर दे। अब बात करते हैं एलिजाबेथ कोलबर्न की पृष्ठभूमि की। एलिजाबेथ एक ब्रिटिश नागरिक है और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया है और 2010 में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में इंटर्नशिप के दौरान उनकी मुलाकात गौरव गोगोई से हुई थी। दोनों ने 2013 में शादी की और उनके 2 बच्चे हैं। एलिजाबेथ 2011 से 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क के साथ काम कर चुकी, जहां उन्होंने भारत, पाकिस्तान और नेपाल से जुड़ी परियोजनाओं की निगरानी की। वे यूरोपीय संसद, अमेरिकी सीनेट, संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थानों से जुड़े रिसर्च कार्यों में शामिल भी रही हैं। फिलहाल वे ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं। मुख्यमंत्री ने एलिजाबेथ और गौरव पर कुल 10 बड़े आरोप लगाए हैं, जिनमें आईबी सूत्रों से क्लाइमेट एक्शन की जानकारी जुटाने, चुनावी हलफनामे में पाकिस्तानी बैंक खाते की जानकारी न देने, एफसीआरए नियमों की दरकिनार कर भुगतान लेने, पाकिस्तान के कई दौरों, अटारी बॉर्डर से यात्रा करने, 2013 में कथित गुप्त यात्रा, संसद में रक्षा उपकरणों और परमाणु संयंत्र पर सवाल उठाने जैसे आरोप शामिल है। लेकिन फिर से दोहराना जरूरी है कि इन आरोपों की अभी तक किसी स्वतंत्र केंद्रीय जांच एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। इस पूरे घटनाक्रम में कई संवेदनशील सवाल उठते हैं। क्या यह वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या चुनाव से पहले राजनीतिक आरोपों की तीखी लड़ाई? क्या राज्य और केंद्र के बीच जांच को लेकर समन्वय होगा? क्या केंद्रीय एजेंसी की जांच के बाद कोई ठोस सबूत सामने आएंगे या मामला राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगा? फिलहाल मामला केंद्र के पास है और आगे की कार्रवाई गृह मंत्रालय की चुनी हुई एजेंसी करेगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, स्थिति स्पष्ट होगी। तब तक यह मामला असम की नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या यह गंभीर सुरक्षा मामला है या राजनीतिक टकराव का नया अध्याय? आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।